750 से लेकर के 1200 एडी तक है, राइट। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, we will start with the advent of Islam, and accordingly we will arrange the topic, right? So first we will continue here. We'll start with the 15th topic, then gradually we'll take the 13th and 14th. So 15th topic of the syllabus we will take first. 15th, ठीक है, 15th हम लोग we will take first. Establishment of Delhi Sultanate. The political condition on the eve of Turkish invasion So we have to see as per the maps, according to the map. So we have seen the first Islamic invasion it was in the Sindh region, and it was Muhammad bin Qasim. First Islamic invader. 712 AD, the Sindh became part of the rule of Khalifa. It was Umayyad dynasty. It was Umayyad dynasty ruling over Sindh. हम लोगों ने इम्पैक्ट भी देखा था इस पर. The impact of the Islamic invasion was deeply realized in the western coast, and the dominance of the Arabian traders had made this area entirely called Arabian Sea. Okay, the political condition was also very much fragile in this region. So therefore, the ground of the Islamic invasion prepared the spread of Islam here in this region. अब देखो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि why Islam not able to enter into the deep heartland, because of the presence of Rajput. Rajput very powerfully placed in this northwestern part of India. This area was actually dominated by Rajput, very powerfully placed. So important Rajput dynasty, the Gujarat region was ruled by Chalukya. Chalukya of Solanki, Gujarat region. Extreme northwest was ruled by Pratihar. Rajasthan, there were so many powers, but the most powerful was Chauhan. Delhi, Tomar,
दिल्ली वॉज रूल्ड बाय तोमर। तोमर से ही तो पृथ्वीराज चौहान ने छीना था दिल्ली, नाना था उसका। तो बोला कि नाना जी दिल्ली ऐसे दे देंगे कि छीनना पड़ेगा, देयरफॉर तोमर से छीना था। और फिर जो कन्नौज है, और आप जानते हैं कन्नौज का स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बट हियर वी हैव द गढ़वाल। गढ़वाल, सो मोस्ट ऑफ द राजपूत एंड हियर इन मध्य प्रदेश में चंदेल, so these are the political configuration of the north west Rajasthan, Gujarat, Delhi, Kannauj. They all were called Rajput, and they were the biggest resistance against the entry of Islam in the deep heartland. The political condition was very fragile because Rajputs were fighting among each other. अभी तक तो हालात यही है, but Pratihar was the most powerful, and the Pratihar state, the most powerful state among the Rajput, was putting tough time for the expansion of Islam. ये ध्यान रखना कि ये मोहम्मद बिन कासिम, they were Arabians. This is Arabic invasion, and the next course of the time will be taken by Turkish invasion. ठीक है, तो इस सारे पॉलिटिकल एपिसोड को हम लोग फर्स्ट देखेंगे। वी आर मूविंग विद द चैप्टर नंबर 15, और 13 14 एक फिलोसफिकल अप्रोच है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 15 से हमने स्टार्ट किया, टॉपिक नंबर 15 से स्टार्ट किया ऑफ द सिलेबस, राइट, सो दैट वी फील द सीक्वेंस प्रॉपरली। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब भक्ति मूवमेंट के साथ पढ़ लेंगे तो आ जाएगा वो साथ में। सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो भी काफी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। सेंट्रल एशिया में उमैयद डिनेस्टी of Syria, it was overthrown by the Abbasid dynasty of Baghdad. And it was Abbasid dynasty who really wanted to expand the boundary of Islam. The post of Khalifa had already moved from Syria to बगदाद। खलीफत मूव कर गया इस डायरेक्शन में, और जो बगदाद का खलीफा था वो ज्यादा इंटरेस्टेड था एक्सपेंशन ऑफ द इस्लामिक रूल इन द ईस्ट, एंड देयरफॉर द अब्बासिद खलीफा लॉन्च्ड मेनी कैंपेन। तो अब्बासिद खलीफा का जो बगदाद, इराक देख रहे हैं ना आप, he had very good influence up to Iran and Afghanistan. So Iran and Afghanistan, there was only one political settlement, that was some notable political settlement, it was Ghazni. So Ghazni was the only notable political settlement. You can watch here. Ghazni. The territory of Ghazni is basically northern Afghanistan. And eastern Iran.
इस दोनों टेरिटरी को गजनी बोला जाता था. नॉर्दर्न ईरान एंड ईस्टर्न, northern Afghanistan and eastern Iran, we call it as a Ghazni. So it had a very good influence, and therefore there were many encouragement from the Khalifa, prompted many rulers, the many invaders to take the expansionist rule in the East India, eastern part of the Asia. So Ghazni. कुछ पॉइंट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट कर लेते हैं क्या एक. The political condition on the eve of Turkish invasion. Political condition on the eve of Turkish invasion. On the eve of Turkish invasion. In Central Asia, there were change of dynasty, of caliphate, from Umayyad dynasty of Syria to Abbasid dynasty. Abbasid dynasty of Baghdad. Abbasid dynasty of Baghdad. Abbasid were very much interested in eastern expansion of Islam. Eastern expansion of Islam. The ruler of Iran, the ruling system in Iran had lost stability after decline of Sassanid Empire. Sassanid Empire. ये ईरान का empire था. It had lost, it had declined around 650 AD. 650 AD. It resulted in political instability. It resulted in political instability. And rise of many small ruling system. Small ruling system. Ghazni was very prominent. Very prominent because of military and warring condition
warring, WARRING, warring condition, led by Mahmud Ghazni, Mahmud Ghazni was first person in the Islamic world had a title of Sultan. First person in the Islamic world had the title of Sultan. He had a special privilege. In relation with the Khalifa. इसका जो टाइटल था देखिए जरा, यामीन उद्दौला। इसका मतलब होता है राइट हैंड मैन ऑफ खलीफा का दायां हाथ है ये, यामीन उद्दौला। ये स्पेशल प्रिविलेज था महमूद गजनी को, यामीन उद्दौला। और दूसरा इंपॉर्टेंट टाइटल है नासिर आमिर उल मोमीन। लीडर ऑफ फेथफुल। मतलब क्या हुआ, जो इस्लाम में बिलीव करता है उसका नेता है वो। नेता बनना आजकल जितना शौक है उस समय भी होता था लोगों को कि कैसे नेता बने, जैसा शौक था तो इसे भी काफी जबरदस्त शौक पड़ा था। तो उसमें जो मारकाट करने में नंबर 1 होता था वो ऑटोमेटिकली नेता बन जाता था। अभी भी ऐसा ही होता है। तो नासिर आमिर उल मोमीन। महमूद गजनी की ब्रेवरी के चर्चे उस इलाके में बहुत थे। प्लंडरर था ये, लुटेरा था, अच्छा लूटता था। हाँ, तो ब्रेवरी के चर्चे बहुत ज्यादा थे। मगर प्रॉब्लम यह था कि कोई उसका प्रेज नहीं करता था और इस बात का उसे बहुत दुख था। बड़े बड़े पोइट्स को उसने अपने स्टेट में पैट्रोनेज दिया, बट प्रेज बिल्कुल भी नहीं करता। और एक ब्यूटीफुल बात थी इस्लामिक रूल की कि जैसे इंडिया में जो भी पोइट होते थे वो एकदम शानदार पोइट्री करते थे इन प्रेज ऑफ द किंग। जबरदस्त कोट पोइट्री का तो जवाब नहीं था, ये ट्रेंड जबरदस्त था। एक भी ऐसा डिस्क्रिप्शन जो किंग के डिफीट के रिगार्डिंग था दैट यू नो डोंट फाइंड इन द लिटरेचर, हार्डली। ठीक है, अगर वो एक भी बात लिखेगा तो वो नहीं रहेगा जो है वो। ठीक है, मगर इस्लामिक रूल में थोड़ी बात अलग थी कि वो खाता भी था कोर्ट में और फिर उसी हिसाब से राजा का क्रिटिसिज्म भी करता था। तो बर्दाश्त करते थे ये लोग। ठीक है, शायद ज्यादा रेशनैलिटी आती होगी कि इनको सब पास रखना चाहिए। तो उसमें से एक नाम था अल बरूनी का। अल बरूनी अरबियन था। अल बरूनी शुरू से ही महमूद गजनी के साथ था और शुरू से ही उसकी आलोचना करता था। तो जब वो इंडिया इन्वेट किया कई बार, तो एक बार अल बरूनी उसके साथ हो गया।
और आया और वो बनारस चला गया। यहां पर उसके साथ आया, यहां पहुंचते ही उसका साथ छोड़ दिया, बनारस चला गया। अल-बरूनी उस समय का बहुत ही स्कॉलर आदमी था। ही वॉज मैथमेटिशियन, ही वॉज जोग्राफर, ही वॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें अल-बरूनी की मास्टरी नहीं थी। उसको तो प्रीलिम्स देना चाहिए था। अल-बरूनी देखो, एक वो था और एक हम लोग हैं। तो अल-बरूनी बनारस चला गया तो उसको शौक चढ़ा कि संस्कृत पढ़ा जाए। तो वो संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस में ब्राह्मणों से संपर्क किया। 10 साल बनारस में रहा। बनारस में जो जाता है वहीं का होके रह जाता है। तो 10 साल बनारस में रहा, संस्कृत सीखी। लोगों ने पूछा सीख लिया? बोला हाँ सीख लिया। मगर उसने किताब लिखी अरबिक में, किताबुल हिंद। बहुत शानदार डिस्क्रिप्शन है अल-बरूनी का। अल-बरूनी के बारे में डिटेल में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक ऐसा हिस्टोरियन है जिस पर क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इस बार फतवाए जहांदारी आया था जियाउद्दीन बर्नी का, तो हमें हिस्टोरियंस के बायोग्राफी, उसके कंट्रीब्यूशंस हमें लिखना है, सारे जितने भी हैं, चाहे वो अल-बरूनी हो, चाहे मिनहाजुल सिराज हो, चाहे जियाउद्दीन बर्नी हो, अबुल फजल हो। इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही टॉपिकल स्टडी करेंगे। हिस्टोरियंस के बायोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उनके क्या मोटिव, इनका इंटेंशन थे। अल-बरूनी बोलता है कि कास्ट सिस्टम इतना रूटेड था, इट इज मेजर रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ इंडियंस। ठीक है, बहुत बड़ा रीजन था इंडियंस के डिफीट होने का। वाई इंडियंस डिड नॉट एबल टू सस्टेन इन द फॉरेन इन्वेजन, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये क्रिटिसिज्म अल-बरूनी ने शुरू में कर दिया था किताबुल हिंद में। फिर एक बात जो उसने बोली, मैं हालांकि उसकी सभी बातों से सहमत हूं। उसने बोला कि इंडियंस दे डोंट हैव द टेस्ट ऑफ हिस्ट्री। इन लोगों को हिस्ट्री पढ़ना नहीं आता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से, अल-बरूनी की इस बात से। ठीक है, और हमें डेली ऐसा महसूस भी होता है। तो अल-बरूनी ने बोला कि हिस्ट्री ये लोग याद नहीं रखता, और इसलिए आप देखिएगा कि डेटिंग सिस्टम वगैरह डेवलप ही नहीं हुआ ज्यादातर केस में। और जब तक क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी नहीं होगी तब तक आप रेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। तो ये सब चीज अल-बरूनी ने पॉइंट किया, जोरदार लफ्जों में पॉइंट किया था। फिर बोला कि ब्राह्मण्स जो होते हैं ना, बड़े एरोगेंट होते हैं और अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करते, ऐसा अल-बरूनी ने बोला। हालांकि उसने ब्राह्मणों से ही संस्कृत सीखी थी, बावजूद इसके बोलता है कि शेयर नहीं करते। देश के हालात को देखते हुए, हालांकि वर्ण व्यवस्था में मेरा ऐसे भी भरोसा नहीं है, और वर्ण व्यवस्था के वर्ण का क्रिटिसिज्म में भी हम भरोसा नहीं रखते, क्योंकि सोशल मोबिलिटी का दौर है ये। उसमें पुरानी बातों को याद करके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होना चाहिए। मगर उसने लिखा, मुझे एक पोइट्री भेजा एक बच्चे ने कि अनाज शूद्र का और घी वैश्य का। गाय चराता था तो घी उसी का हुआ, अनाज खेती करता था शूद्र तो शूद्र का, तो आटा शूद्र का, घी वैश्य का, और हलवा ब्राह्मण का। ये एक पॉइंट भेजा था कि सर इसको आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वन डिस्क्रिमिनेशन में देखते हैं कि नहीं देखते। हम बोले होता होगा पहले इस तरह की बात इस तरह की बात होता होगा पहले, बट अभी तो सोशल मोबिलिटी का दौर है, तो इसमें कैसे रिलेट करें। बोला कि जब आटा उसका है, घी इसका था, हलवा किसका हुआ है, ये बात हुई। तो उसी में एक और चीज जोड़ा, बोला कुआं ठाकुर का, बहुत बड़ा पोइट्री है ये। सो लीडर ऑफ फेथफुल बोलते थे। तो मोहम्मद गजनी के कोर्ट में अल-बरूनी था, किताबुल हिंद लिखा, आलोचना करता था अक्सर, इसलिए कभी उसको पुरस्कार मिला नहीं। नो रिवार्ड एनीवेयर, कभी कोई गिफ्ट
महमूद गजनी ने दिया नहीं, उसको गिफ्ट दिखा के छीन लेता था। उसके बाद किसी ने उसको बताया कि यूपी में एक हिस्टोरियन है फिरदौसी, और अपने शानदार बातों के लिए जाना जाता है वो, और कई किताबें फिरदौसी ने लिखी थी जिसमें कि काफी प्रेज किया था उसके काम का। तो ये तो सीधा नहीं बोल सकता था कि तुमको मैं हायर करता हूं और तुम मेरा प्रेज करो। फिरदौसी को बुलाया, अच्छे खाने अच्छे कपड़े पहनाए और बोला किताब लिखोगे, इस उम्मीद में कि शायद किताब में हमारा प्रेज करेगा। पर फिरदौसी भी लाजवाब आदमी था, उसने किताब लिख डाली, शाहनामा। ये फिरदौसी की किताब है, शाहनामा। एक लाइन उसके बारे में प्रेज नहीं था, ठीक है ना। बड़ी गिफ्ट मंगवाई थी, दरबार में सजाया, बोला फिरदौसी की किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ी जाए हमारे बारे में। पढ़ा तो उसमें कहीं भी प्रेज नहीं था। उसने अपने दरबारी को हल्के से इशारा किया, गिफ्ट वापस। तो इस तरह से फिरदौसी था। तो एक अलबरूनी हो गया, दूसरा फिरदौसी हो गया, तीसरा नाम आया उत्बी का। तो उत्बी जो था, उसको हल्के से बोला कि थोड़ा अच्छा लिखना, ठीक है। उत्बी को बोला, उत्बी ने किताब लिखी तारीख यामिनी। उसने पूरी किताब में पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी ही नहीं, ठीक है। जब पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं लिखी तो उसमें उसके नाम का आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब ऐसा किताब जिसमें उसका नाम ही नहीं हो, तो उसमें क्या प्रेज और क्या। तो फाइनली एक था बैहाकी। बैहाकी ने किताब लिखी तारीख सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन उसके फादर का नाम था। तो उसने इसका तो प्रेज नहीं किया, बट उसके फादर का बहुत प्रेज किया। तो सुबुक्तगीन जो उसका मोहम्मद गजनी का फादर था, तो भारी मन से उसने सारी गिफ्ट मंगवाई कि कम से कम मेरे बाप का तो बड़ा किया है। एंड देन फाइनली, तो इस तरह से इतने सारे कोट पोइट, क्या नाम लिया मैंने, पहला लिया मैंने अलबरूनी का, दूसरा फिरदौसी का, तीसरा उत्बी का, और चौथा बैहाकी का, राइट। सो अलबरूनी की किताब का क्या नाम है, किताबुल हिंद। फिरदौसी शाहनामा, एंड उत्बी तारीख यामिनी, बैहाकी तारीख सबूक्तगीन। तो ये सारे किताब आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे अर्ली टर्किश इन्वेजन में, तो ये सारे रेफरेंस देकर के आप अच्छा नंबर बटोर सकते हैं। क्या है अब की बार 300 पार, क्या है हम लोग का 300 पार। और ये कैसे आएगा, जब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से दिखेंगे, ठीक है। कॉपी नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग से लिखना है। हम लोग काफी होशियार हो चुके हैं, लिखो। तो महमूद गजनी, ही वॉज फ्रॉम द गजनी। महमूद गजनी, ये सब लिखा ना, ये सब लिखा दिए ना, यामिनुद्दौला एंड ये सारा। There were many poets living in the court of Mahmud Ghazni. First, Kitab ul Hind. Kitab ul Hind. It is in Arabic. Second, Firdausi. 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 He wrote Shahnama. Utbi. Tarikh Yamini. Baihaqi.
तारीख शबुक्तगीन, these are the poets living in the court of Mahmud Ghazni. कोट पोइट है, कोट पोइट, तारीख सबुक्तगीन। महमूद गजनी, बोलो बोलो बोलो। Muhammad Ghazni, he led 17 invasion 17 invasion in the northwestern part of India. Northwestern part of India. From 998 AD to 1030 AD. During this time, he made 17 invasion. Invasion. There were many factors like political, economic, religious, and strategic factor which led to the invasion of Turkish in India. Invasion of Turkish in India. Political factor. तो मैंने आपको बताया कि केवल नॉर्दर्न अफगानिस्तान में ही गजनवीड एम्पायर था. So Ghaznavid Empire was facing many challenges from the Iranian Empire. So he was looking for territorial expansion towards eastern Afghanistan. Okay. In northwestern part of India, the political condition was very fragmented. Rajputs were politically divided. Therefore, resistance of his invasion was very less. Resistance of his invasion was very less, very weak. Resistance of his invasion was very weak.
Okay. Resistance of his invasion was very weak. नेक्स्ट उसी में पॉलिटिकल फैक्टर में लिखना है, he wanted to demonstrate his military capability. He wanted to demonstrate his military capability among the rivals. Therefore, he wanted to increase his legitimacy. He wanted to increase his legitimacy of powerful ruling system. Powerful ruling system. Right? Economic factor. इंडिया बहुत रिच है, इंडिया बहुत रिच है, इसका ढोल पूरी दुनिया में पीटा गया था, इसलिए रिच माना जाता था कि बाकी सब पुअर थे, इसलिए ये काफी रिच था। और खासकर इंडियन टेम्पल्स जो थे, इट वॉज हैविंग द क्लस्टर्स ऑफ गोल्ड। भगवान को देंगे, भगवान कई गुना ज्यादा देगा, बट भगवान कब देगा? अगले जन्म में। इसलिए कोई समस्या भी नहीं थी कि आप गरीब हो जाएंगे देने से, तो लोगों को कोई ऐसा डिफिकल्टीज नहीं था। तो टेम्पल्स वाज वेरी रिच, बहुत रिच थे, और इसलिए इन्वेडर्स काफी अट्रैक्ट होते थे टेम्पल्स की तरफ इन्वेड करने के लिए। तो इकोनॉमिक मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और इन लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी नहीं। एक तो लैंड भी बहुत ही लिमिटेड फर्टाइल था, और मेहनत करके कौन खाता है जब लूटने से ही मिल रहा है, इसलिए ये लोग उसी पर ज्यादा फोकस करते थे। तो मिलिटरली एक वॉरिंग कंडीशन में रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर लोग काफी फर्टाइल लैंड था, और प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट रिफ्लेक्ट होता था, इसलिए इन्वेजन का एक रीजन था इकोनॉमिक फैक्टर। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन सेंट्रल एशिया, the availability of resources in Central Asia was very less. Therefore, in order to sustain the infrastructure of the state, military, and administration, Mahmud Ghazni decided to invade. In order to sustain infrastructure, military, and administration, Mahmud Ghazni decided to invade. Temples of India was very rich. Therefore, the wealth was accumulated. The wealth was accumulated. And a single invasion always give rich prosperity to Mahmud Ghazni. Always give rich prosperity to Mahmud Ghazni.
In 1025, Mahmud Ghazni invaded on Somnath. And collected huge gold reserve. Collected huge gold reserve. बोलते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, ये सब बेहाकी, उतबी और ये सब जो डिस्क्राइब करता है इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी का, वो बोलता है कि द कैमल्स, द हॉर्सेस, द डंकीज, द म्यूल्स, ये सब एकदम लाइन लगा करके सोमनाथ से सीधा गजनी तक एक लाइन में ट्रेवल करते थे विथ रिच लैडन गोल्ड ऑन द एनिमल्स। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि कितना ज्यादा यहां से प्लंडर किया होगा, बट तब भी वो लोग अमीर नहीं हो पाया। ठीक है, प्लंडर्स विल नॉट मेक यू रिच, इट इज ओनली द रिसोर्सेज सेल्फ जनरेटेड कैन मेक द रिच। और इस चीज में अभी देखो, जैसे दुनिया भर में बोलते हैं ना कि तेल खत्म हो जाएगा तो फिर से ये लोग गरीब हो जाएगा, तो पूरी दुनिया तेल खत्म होने का इंतजार कर रही है कि कब तेल खत्म होगा, कब ये जो सेंट्रल सऊदी अरबिया से यूएई ये सब गरीब होगा। बट दे हैड शिफ्टेड टू द डिफरेंट मॉडल्स। अब तो ये लोग स्पेस रिसर्च की बात करने लगे हैं। अब ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भले ही बोरोड हो वेस्टर्न वर्ल्ड से तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी उसे जो दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसोर्सेस, तो ट्रांसफर होता रहता है शिफ्टिंग। तो इंतजार नहीं करना है कि वो गरीब हो जाएगा, वो गरीब होगा तो आप लोग और गरीब हो जाएंगे तो इस तरह से ट्रांसफर, हाँ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। ये जो 1025 है 1025, आफ्टर 1000 ईयर 2025 अभी चल रहा है, और ये पीरियड मिलेनियम ये इतना इवेंटफुल है। आपको ये वाला मैगजीन मिला, केजीएस में जो मैगजीन आती है, आप लोग को नहीं मिलता है क्या? हाँ, करंट अफेयर्स का मिल गया तो सबको बताना चाहिए ना ये एकदम महमूद गजनी की तरह कि नहीं हमने लूट लिया, अब दूसरे को लूटने नहीं देंगे। सबको बताना चाहिए कि मिल गया, तो ये प्रिया भी ले लेती तो अंजलि भी ले लेती। इस तरह से उसमें मैंने भी एक वीडियो बनाया है, आपको उसमें यूट्यूब पर मिलेगा, उसको देखना कि उसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि ये बताने से मैं महसूस किया कि ये वीडियो बनाने का क्या रीजन है। तो देन आई रियलाइज्ड कि स्टूडेंट देगा और पढ़ेगा नहीं, मगर वीडियो अगर बना देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, मैंने बोला तो नज़र आ जाएगी। तो उसमें बहुत सारे लोगों पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर है, तो उसको देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गंगाई कोंडा चोलापुरम के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ वहाँ पर, और ये मिलेनियम सेलिब्रेशन है जो 1025 का था, तो वो इवेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस मैगजीन को आप फटाफट पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स हैं, राइट, जो नॉर्मली कल्चर की किताबों में एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होता, बट इट विल गिव यू गुड हेल्प इन एग्जामिनेशन। इसलिए तो पहले तो वीडियो देखना है मेरा, उसमें पता चल जाएगा तुमको इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। बोलिए। वॉरियर्स थे, प्लंडरर्स थे, तो उनका एक्सपेंडिचर तो था ही ना। एक्सपेंडिचर तब सस्टेन करेगा जब जनरेशन होगा रिसोर्स का। बहुत बड़ा रिच आदमी भी लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता अगर डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हो जाता है तो, इसलिए चला गया। या उसको कोई लूट लिया होगा क्योंकि जब सब लुटेरा ही है तो एक दूसरे को लूट रहे। तो रिलीजियस फैक्टर, देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, concept of jihad
against the non-Muslims. Against the non-Muslims. His intention was was to transform Darul Harb into Dar ul Islam. Darul Harb into Darul Islam. मतलब land of the infidels to the land of the Muslims. Land of the kafir to the land of Islam. He was also known as Buth-Sikan. Mahmud Ghazni was known as Buth-Sikan. मूर्तियों को तोड़ने वाला है. He is the breaker of the idols. Buth-Sikan. Butshikan. Buth-Sikan. Breaker of the idols. So therefore there was a religious factor to invade on India. ठीक है, इसी में आगे चेंज करके पैराग्राफ लिखना कि महमूद गजनी wanted to control the most profitable trade route. Most profitable trade route from Central Asia to India. Central Asia to India. Therefore, control on the northwestern province. Control on the northwestern province will help Mahmud Ghazni to invade on India. Right, so these are the factors. क्या क्या factors हमने point किए जरा, let us talk. First is the political factor. Political factor क्या है? Instability थी सेंट्रल एशिया में और लगातार जो इरानियन एम्पायर था वो प्रेशराइज कर रहा था, इसलिए ईस्टर्न एक्सपेंशन एक. फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर क्या था? Resources was very less and Indian temples was highly resourceful, and that is the reason why they're trying to find out the ways of the consistent source of income. Okay, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत हाई था, वॉर एक्सपेंडिचर बहुत हाई था, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हाई है, दीज फैक्टर्स. देन रिलीजियस फैक्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद डेवलप हुआ इन लोगों के बीच में, एंड दे वांटेड टू कन्वर्ट द दारुल हर्ब इनटू दारुल इस्लाम. देयरफॉर वन रिलीजियस मोटिवेशन वाज वेरी हाई. एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ट्रेड रूट ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड इंडिया that has to be controlled, and northwestern India per control karna was a big opportunity for them. So these factors contributed in the why Mahmud Ghazni had invaded on India. So Mahmud Ghazni के invasion का, but primarily वो इंडिया के ऊपर एक पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करना चाह रहा है,
वो इसका इंटेंशन नहीं है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of Mahmud Ghazni was economic region. Economic region. He did not created any territory in India. He did not created any territorial expansion in India. Did not created any territorial expansion in India. तो इसके टाइम पर अल बरूनी का कंट्रीब्यूशन इंडिया को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है. अल बरूनी ने जो किताब लिखी है किताब उल हिंद, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज मेड बाय एडवर्ड सचाउ. अल बरूनीज इंडिया. एडवर्ड सचाउ जो एक इंग्लिशमैन है, he translated the description of Al Baruni, and thereafter we understand many important things about India. इस पीरियड में इंडिया में बहुत कम हमें जानकारी मिलता है. ये फ्यूडल टाइम था. ये फ्यूडल टाइम था काफी, इसलिए लिटरेचर भी बहुत कम अवेलेबल था हमारे पास. So let's talk about the Al Baruni's India. एक्सपेक्टेड है ये. अल बरूनी he was one of the greatest scholar. He was one of the greatest scholar in the Islamic world. He wrote volumes about geography, anthropology, biology, history, and astronomy. He was known for scientific approach and comparative study of the cultures. Particularly the cultures of India. Al Baruni was Arabic. He was brought in the court of Mahmud Ghazni. Mahmud Ghazni
after invasion on Iran. Mahmud Ghazni had supported Al-Biruni to travel in the deep heartland of India. Deep heartland of India. डीप हार्टलैंड मतलब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन अंदर तक वो जाकर के पढ़ सकता, बनारस तक भी पहुंचा था उसके खर्चे पर. डीप हार्टलैंड ऑफ इंडिया. Al-Biruni never involved in any warfare, but he gave preference to the, did not involved in any warfare, but he gave preference to the scholarly values. Scholarly values. He stayed in Banaras for a decade. He learned Sanskrit. He studied Vedas and the Puran. He presented unbiased description of Indian society. According to Western scholars, his study was very scientific, systematic, and objective. He was deeply interested in Indian philosophy. Deeply interested in Indian philosophy. He wrote Kitabul Hind, a book of India, in Arabic. Kitabul Hind, a book of India in Arabic. He had all praise for Indian society. All praise for Indian society. Scientific and mathematical learnings of the Indians. Scientific and mathematical learning of the Indians. Rich geographical feature.
rich geographical feature, resourceful minerals, etc. Indians were Indians were very much involved in metaphysical discussion. Metaphysical discussion. Indians had big faith in life after death. Big faith in life after death. Some of the interpretation of Al-Biruni, was very revealing. बहुत बड़ा रिविलेशन था ये, वेरी रिवीलिंग लाइक caste system was the region of the defeat of Indians. Region of the defeat of Indians. Second, knowledge of the dominance of Brahmanas. Knowledge of the dominance of the Brahmanas. Brahmins, they don't share knowledge with others. Don't share knowledge with others. Brahmins were highly ritualistic. Society was rigid. Lower caste was excluded. There was lack of interaction. And cultural exchange. Between interaction and cultural exchange between Indians and the foreigners. ठीक है, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. Women had to live in the patriarchal society. Had to live in the patriarchal society. They had to face the sati. Which shocked him. Which shocked him. Shocking for Al-Biruni. कभी फ्लाइट में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडिगो का जो सीढ़ी होता है ना,
उस पर लिखा रहता है, ध्यान से देखोगे तो अब पता चलेगा, इसमें लिखा हुआ था कि 35,000 फीट एबव पैट्रियार्की, राइट। ऐसे दिखता तो कई बार था, बट उतना कौन ध्यान देता है क्या लिखा है, लोग फालतू का लिखते रहते कुछ। पर चूंकि हैड टू वेट आउटसाइड, तो मैं काफी देर से कहना से मुझे, अरे ये तो कुछ कहना चाह रहा है कि 30,000 35,000 फीट एबव पैट्रियार्की। तो ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है कि है, अभी भी तो है, इसका अल्टरनेटिव भी तो नहीं है, और ना कभी था। ठीक है, इसलिए इसको सोशल एडजस्टमेंट माना जाता है। और कई जगह तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेमेन है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मैन, तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसलिए कोई खास पैट्रियार्की के लेवल से डिमोरलाइज होने की बात नहीं। सो कास्ट सिस्टम, द कंडीशन ऑफ वेमेन वाज very harsh. They had to suffer sati, which actually shocked Al-Baruni. Right. Women's never had the property right in India. Never had the property right in India, as per Al-Baruni. As per Al-Baruni, women's never had the property right in India. और नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियंस दे डोंट वैल्यू देयर हिस्ट्री। ठीक है, एक तो हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहता है, स्नेह को तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। तो इंडियंस दे डोंट वैल्यू देयर हिस्ट्री, और दे हैड नो हिस्टोरिकल सेंस। तो अलबरूनी की बहुत सारे बातें हैं, किताबुल हिंद अरबिक में लिखे थे। ठीक है, सो रीजन ऑफ द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अलबरूनी। फटाफट बोलो, who are the poets living in the who are the poets living in the court of Mahmud Ghazni? Al-Baruni, देखना नहीं है, देखना नहीं है। बैहाकी, कुतबी, बैहाकी, फिरदौसी और अल-बरूनी। बैहाकी की किताब का क्या नाम है? तारीख सुबुक्तगीन, राइट। कुतबी की किताब का क्या नाम है? यामिनी। हाँ, इसको जबरदस्ती नहीं पढ़ाना, खुद पढ़ रही है। उसके बाद फिरदौसी, शाहनामा एंड अल-बरूनी। जीएस में पिछली बार क्वेश्चन आया था, पिछले के पिछली बार, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्शियन लिटरेचर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ने यहीं से स्टार्ट कर दिया, किताबुल हिंद से। ठीक है, और इसमें तो काफ़ी रिसोर्सफुल है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन आसानी से आंसर बैठ जाता है। बट किताबुल हिंद पर्शियन में है ही नहीं, ये क्या है? अरबिक में है। तो इसके बाद की सारी किताबें पर्शियन में है। तो एग्जामिनर ने जब देखा होगा तो उसे यही महसूस हुआ होगा कि इंटेलिजेंट आदमी ने इसको नहीं पढ़ाया है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमको तो मत करो स्नेहा, ठीक है, मगर आज ना कल तुमको ये बात माननी पड़ेगी। हम लोग ने चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट किया है मेडिवल इंडिया में, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, द घुरियन इन्वेजन, फैक्टर्स बिहाइंड घुरियन सक्सेस। अब हम लोग गजनबी से घुरी की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर ईयर वाइज देखोगे तो देर आर 3 मेजर इस्लामिक इन्वेजन विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो थोड़ा एक ईयर देखने से हमें कुछ अंदाजा लगेगा बहुत शानदार। जैसे फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन था वो अरबिक था, मोहम्मद बिन कासिम का, और उसका टाइम फ्रेम देखो जरा, 712 AD, राइट। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इस्लामिक इन्वेजन वाज महमूद गजनी। हालांकि महमूद गजनी का इन्वेजन जो था वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस था,
to Mahmud Ghazni, and it had happened around ठीक है 998 से लेकर के 1030 तक इसने 17 बार इंडिया पर इन्वेट किया था, जिसमें कि जो 15th इन्वेजन है, 15th आउट ऑफ ये क्या है, सोमनाथ का। ठीक है, पूरा लूट के ले गया, फिर उसको कोई और लूटा। ठीक है, लगातार कई बार लूटते हुए समाप्त हो गया वो वेल्थ। उसके बाद फिर अमेरिका लूट के ले गया। तो महमूद गजनी, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक है। थर्ड का गैप देखना कितना बड़ा है, और वो है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि अब इस्लाम इंडिया में एंट्री करेगा, राइट। और ये जो है वो 1175 के अराउंड है, राइट। सो देयर इज अ ह्यूज गैप of 300 years, and then again 150 years, and then establishment of Delhi Sultanate, right? So 300 years and 150 years, and then establishment of Delhi Sultanate. You can understand the slow pace of the development of Islam, right? Muhammad Gori, इसका भी लोकेशन ऑलमोस्ट वही है। द मैप ऑफ द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी, एक नजर डालिए आप। ठीक है, देखो बच्चे, स्नेहा स्नेहा देखो इधर। 1175 to 1178 इसका फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट था मुल्तान और सिंध में, और उसके बाद इसने दिल्ली पंजाब की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज किया था, राइट। अंपायर देखो इसका, ईरान भी कवर कर रहा है, इराक भी कवर कर रहा है, और ये बंगाल तक है ये। ठीक है, ये वाला रूट लिया है। सिंध तो पहले से ही है ये। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो हिंदू कुश माउंटेन दिख रहा है ना, कवर करते हुए हिंदू कुश माउंटेन, इसमें जनरली दो पास होते थे, एक बोलन और दूसरा खैबर। और ये वाला पास हमेशा आसान होता था, और इसलिए भी चूज करते थे कि यहां पर इस्लामिक पॉपुलेशन सिंध में डेवलप भी हो गया था। ठीक है ना, इसलिए इस्लामिक इन्वेडर्स के लिए ये इजी पाथ था। तो ये रास्ता क्लियर किया था मोहम्मद गजनी ने। 17 टाइम्स ही हैड इन्वेडेड थ्रू दिस पास। गुजरात सीधा इधर से आप एंट्री मारेंगे तो सिंध, गुजरात, राजस्थान ऐसे करते हुए निकलेंगे आप। ठीक है ना, तो मोहम्मद गजनी ने इसको फ्रेम किया था। तो मोहम्मद गोरी जो ज्यादा स्टेबल था, एग्रेसिव कैरेक्टर था, इसका पूरा खानदान ही लड़ाका था। ठीक है, इसका जो चाचा था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन नाम था, उसका टाइटल था जहान सोज। ऐसे तो पूरे गुरी फैमिली का ही टाइटल था ये। तो जहान सोज का मतलब होता है वर्ल्ड बर्नर, पूरी दुनिया को जला दूंगा, राइट। वर्ल्ड बर्नर, ये पूरी दुनिया को जलाने का ख्वाब रखता था अलाउद्दीन हसन शाह। और अलाउद्दीन हसन, जहान सोज हमेशा माचिस लेके चलता था ये, तो वर्ल्ड बर्नर बोला जाता है। मगर ये देखो, सुनो बच्चे, यहां पर जो गुजरात का रूलर है चालुक्य,
फायर ब्रांड राजपूत है, सोलंकी। तो ये कभी भी रेसिस्ट नहीं किया, महमूद गजनी को भी रेसिस्ट नहीं किया, और मोहम्मद गोरी जब इन्वेट किया तो ये फिर भाग खड़ा हुआ था। तो जो क्वीन थी चालुक्य रूलर की, शी हैड टेकन द कमांड ऑफ द मिलिट्री एंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ माउंट आबू, और ये ईयर था 1178। तो इतना पैनिक में था मोहम्मद गोरी कि यहां से ये भाग गया। ये ऐसा लड़का था ना कि ज्यादा उसका भरोसा था कि भागे कैसे, ठीक है ना। तो ये इन्वेजन से ज्यादा उसके फॉर्मूला होते थे कि अगर मामला उल्टा पड़ा तो भागना कैसे, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसको पीटा है, ठीक है। पीटने वाले को वो सबसे पहले भूलता था, क्योंकि उसका कहना था कि पीटने वालों को याद रखेंगे तो फिर अगला जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए यहां से वो भाग गया। तो उसके बाद खैबर रूट में एंट्री किया, उसके बाद पंजाब और दिल्ली की तरफ इसका रास्ता बढ़ा था, ठीक है, क्योंकि एक लेडी ने डिफीट कर दिया था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो यहां पर भी जब दो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तराइन की, तो फर्स्ट लड़ाई में भाग गया था ये, तो ही रिटर्न बैक टू अगेन। तो ये जब भागने लगा था तो हरियाणा की तरफ से भाग रहा था, जाटों ने पकड़ लिया और बहुत मारा था। तो ये उस टाइप का नहीं था जो महमूद गजनी था कि नहीं कोई छू नहीं सकता, जितना पीटना पीट लो, उसके बाद अगले दिन फिर तैयारी कर लेता था कि इस बार दूसरे रास्ते से जाऊंगा और नहीं पीटूंगा। तो ये था मोहम्मद गजनी एंड देयरफॉर सक्सेस। तो गैप, तो कंपैरिजन करें तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, तो क्या चाहते थे कि नीचे आ जाता और बंगाल बच जाता। क्या था ना कि जो प्रोस्पेरिटी थी उसके बारे में बहुत सारा अरबिक ने जो स्टडी प्रेजेंट किया। आप कैसे जानते हैं कि वॉशिंगटन बहुत रिच है, न्यूयॉर्क बहुत रिच है? बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट यू गेट। तो इसके पहले कौन कौन से अरबिक ट्रेवलर आए थे देखिए। अरबिक ट्रेवलर ने हमने आपको अल मसूदी, सुलेमान, तो ये लोग जो डिस्क्रिप्शन दिया वो पूरे गंगेटिक वैली का डिस्क्रिप्शन था, और उसी को प्रोस्पेरिटी को टारगेट करते हुए आगे बढ़े थे वो। तो गंगेटिक वैली तो ऐसे भी मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑन अर्थ माना जाता था, तो ये लोग इमेजिन करते थे कि प्रोस्पेरिटी यही है और ऐसे भी सीधा रास्ता चलना चाहिए। तो इन्वेजन ऑफ महमूद गजनी, मुगोरी, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी। इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी। After a gap of 150 years, gap of 150 years, 150 years, Muhammad Gori decided to go for the eastern expansion of the Ghurid Empire in India. Ghurid, Ghurid, Ghurid Empire in India. Expansion of the Ghurid Empire in India. He adopted the route of Bolan,
to invade in Gujarat and Rajasthan. Muhammad Ghori was deeply interested in prosperity of Gujarat. Deeply interested in prosperity of Gujarat. Prosperity of Gujarat. Deeply interested in prosperity of Gujarat. But he faced defeat in the Battle of Mount Abu. He faced defeat in the Battle of Mount Abu. He tried his luck again from the Khyber Pass. He tried his luck again from the Khyber Pass. So he was trying to invade. In Punjab and Delhi. In Punjab and Delhi. After two consecutive battles, known as First Battle of Tarain, 1191 AD, and Second Battle of Tarain, 1192 AD, he was successful in breaking the defense of India. He was successful in breaking the defense of India and subsequently established Delhi Sultanate Factors behind the success of the Ghurid. Factors behind the success of Ghurid. देख रहे हैं हम लोग हमेशा से सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, एक एक चीज डिकोड करते हुए, एक एक लाइन को डिकोड करते हुए. सो फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ गुरीद. एक बात जो क्लियर है, जिसने अलबरूनी ने भी रास्ता दिखा दिया था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द सक्सेस. एक तो यहां पर सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन अमंग द इंडियंस. तो पॉलिटिकल डिवीजन वाज अ वेरी रेकनिंग फैक्ट. जैसे राजपूत्स, दे वर डिवाइडेड इन स्मॉल प्रिंसिपलिटी. देयर political and military strength was very comparative, so they keep on fighting for territorial existence, right? So main reason among the Rajput was the factors of territorial existence, so they keep on fighting among themselves. There were many small Rajput principality. उस समय जो चौहान था एक बड़ा पावर के रूप में उभरा था. और मैंने बताया आपको कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था इंडिया का. तो दिल्ली में तोमर था और राजस्थान में चौहान. ये जो चौहान है इनको चहमना बोलते हैं, राइट. साकंभरी उनके गांव का नाम था और गांव का नाम
गांव के देवता के नाम पर था। तो शाकंभरी देवता भी थे और शाकंभरी की पूजा करते थे, और गांव का नाम भी शाकंभरी था, इसलिए शाकंभरी चौहान बोलते थे। तो जब थोड़ा सा पावर बढ़ गया तो दे हैड एस्टैब्लिश्ड अ कैपिटल एट अजमेर। जो चौहान रूलर था अजयराज, ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ अजमेर। देन फ्रॉम अजमेर उनका मैटरनल रिलेशन था दिल्ली में, नाना था अनंगपाल तोमर, वो छीन लिया दिल्ली, और उसके बाद फिर ये लोग दिल्ली आ गए। तो चौहान वॉज डीपली सेटल्ड इन दिल्ली। अब चौहान तो दिल्ली में है, रहने दीजिए दिल्ली में इसको। चौहान तो दिल्ली में है, ये दिल्ली में ही रहेगा। और इधर कन्नौज में है गढ़वाल, गढ़वाल। एंड देयर वाज अ बिटर पॉलिटिको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चौहान एंड गढ़वाल। और ऐसे भी दिल्ली और कन्नौज का जो डिस्टेंस है ना, उसमें दो पावरफुल रूलर एक साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सो दिस क्लैश वाज नॉट ओनली द एम्बिशन बट बेसिकली क्लैश ऑफ जियो पॉलिटिक्स। एक रीजन था चौहान और गढ़वाल के बीच में, और कन्नौज पर कैप्चर करना हमेशा से एक बड़ा एम्बिशन रहा है। कन्नौज वॉज द मोस्ट फर्टाइल लैंड कंसिडर्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो गंगा यमुना दोआब का बहुत ही फर्टाइल लैंड है। तो ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान जब नाना को नहीं छोड़ा तो बाकी लोगों को कैसे छोड़ेगा। मगर इसकी हरकतें भी थोड़ी अलग थी। राजपूतों में स्वयंवर होता है, और राजपूत तो ऐसे भी मेल चाइल्ड में बिलीव करता था, तो फीमेल चाइल्ड काफी कम ही होते थे। तो उसमें गढ़वाल की जो जयचंद है, उसकी एक डॉटर थी समयोगिता, उसका स्वयंवर ऑर्गेनाइज हुआ। तो स्वयंवर वॉज मच एक्लेम्ड स्वयंवर बिकॉज इट वॉज रेयर। So all the Rajput warriors were invited. पृथ्वीराज was not invited, क्योंकि जयचंद इसको बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं समझता था, अच्छा आदमी नहीं समझता था। ठीक है। और क्योंकि ये दिल्ली छोड़ के कन्नौज में ही घूमता रहता था। मगर जब इसको इनविटेशन नहीं मिला तो बोला जब इनविटेशन नहीं मिला तो जाना पड़ेगा। सो ऑल द राजपूत वॉरियर्स दे वर वेटिंग देयर इन द लॉन कि स्वयंवर अब स्टार्ट होगा। वो बहुत बड़ा प्रिपरेशन करके गए थे लोग, 2 महीना पहले से ही जिम ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। दे वर वेटिंग इन द लॉन, और देन संयोगिता एंड पृथ्वीराज चौहान रैन अवे फ्रॉम द बैक डोर, leaving Jayachand humiliated. So obviously, so that was not in the good sense for the prestige of the big ruler like Jayachand. So Jayachand greatly helped Muhammad Gori and wanted to humiliate Prithviraj Chauhan at any cost. So this is the internal disunity among the Rajput was primarily one of the reason of the success of the Ghurid. Fine. Political factor है ये. So political factor. The political condition of northern India, the political condition of northern India was very fragile. Very fragile. Many Rajput state many Rajput states were fighting for territorial existence. Fighting for territorial existence. So therefore, their united politico-military strength, was very weak.
Therefore, their united politico-military strength was very weak. In northern India, the hostility of Chauhan and Garhwal was very intense. Hostility of Chauhan and Garhwal was very intense. Very intense. Chauhan shifted the capital from Ajmer to Delhi. And Garhwal was settled in Kannauj. The conflict between Chauhan and Garhwal was was clash of ambition, territorial existence, or clash of geopolitics. Clash of geopolitics. ठीक है, उसी में पैराग्राफ चेंज करके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल फैक्टर में ही द स्वयंवर ऑर्गेनाइज्ड बाय जयचंद, स्वयंवर organized by Jayachand for his daughter Samyogita. For his daughter Samyogita. In which Jayachand left humiliated. Jayachand left humiliated because of marriage between Samyogita and Prithviraj. उतना डिटेल नहीं लिखना है कि जिम जाता था समयोगिता एंड पृथ्वीराज. Therefore, as per the legendary folk tales, कहानी किससे होते हैं? Legendary folk tales Jayachand helped Muhammad Gori. Jayachand helped Muhammad Gori, resulted in defeat of Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain. Second battle of Tarain, 1192. ठीक है.
वैसे दूसरा फैक्टर जो है ना, सेकेंड फैक्टर, सुपीरियर वॉर स्किल ऑफ घुरीद, ये बहुत कम हिस्टोरियंस एक्सेप्ट कर पाते हैं इस चीज को, कि राजपूत के पास भी बहुत अच्छे वॉरिंग स्किल थे। राजपूत तो इनफैक्ट मिलिट्री मार्केट कहा जाता था इंडिया का, इसलिए घुरीद के पास बेटर वॉर टेक्निक था, वॉर स्किल था, ये देखने की बात है। बट देर आर सम हिस्टोरियंस हु सेड कि नहीं, इसके पास ज्यादा मिलिट्री स्किल था, ज्यादा बेटर इक्विपमेंट्स था। बात ये थी, ये राजपूत लोग ना बड़े एथिकल होते थे, हाई वैल्यू ऑफ एथिक्स। अगर लड़ते लड़ते एनिमी का तलवार गिर गया ना, तो ये पहले तलवार उठा के उसको दे देता था। ठीक है, अरे तुम्हारा तलवार गिर गया, लो। ठीक है, पानी भी पिला देता था, खजूर खाएगा खा लिया, देन स्टार्ट फाइटिंग। जबकि जो इन्वेडर्स थे उनके पास जो एथिकल वैल्यूज था वो नहीं था। तो एक रीजन ये भी होता है कि हाई डिग्री ऑफ एथिक्स, मॉरलिटी, जिसका पेपर 4 मजबूत है उसका पेपर 1 मजबूत नहीं रहता एथिक्स का। तो इस तरह से हिस्ट्री उसकी मजबूत नहीं रहेगी, तो ये रीजन माना जाता है। एनीवे, सुपीरियर वॉर स्किल ऑफ घुरीद, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, घुरीद had better organized cavalry, had better organized cavalry. बेटर ऑर्गेनाइज्ड कैवलरी, घुड़सवार सेना था। घुरीद had accepted guerrilla as well as traditional method of warfare. ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर भी करते थे और ट्रेडिशनल भी। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब सरप्राइज अटैक में बिलीव करते थे। सो गुरिल्ला वॉरफेयर एंड ट्रेडिशनल वॉरफेयर। और राजपूत सब जो आता था वो घंटी वंटी बजा के आता था उधर से कि तैयार हो लड़ने के लिए। हाँ तैयार है, ठीक है, मेरा खून खौल रहा है, बोला रुको थोड़ा और खौलने दो। और इस चक्कर में हार जाते थे, कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो यही नहीं डिसाइड हो रहा था कि राजपूत कौन है। उसके बाद आगे तो देखो, इन लोगों के पास एक जबरदस्त टेक्निक थी, उसको बोलते हैं हॉर्स आर्चरी, जिस जो कि इंडिया में डेवलप नहीं हुआ था मेथड ऑफ वॉरफेयर। घोड़े पर बैठ करके तीर चलाना उतनी रफ्तार से, तो ये लोग निशाना बहुत जबरदस्त लगाते थे, और इन लोगों का निशाना ही नहीं लगता था कभी भी सही टाइम। So, Ghurid had a superior method of Ghurid had superior method of horse archery. Horse archery. Rajputs were not familiar with this technique. Were not familiar with this technique. ठीक है, आगे लिखना कि defeat of Turkish was a learning time in the battle. Defeat of Turkish was a learning time in the battle. सीखते थे वो। Learning time in the battle. So, however, the Rajputs felt demoralized
ठीक है, बहुत तरह का था। सूर्यास्त हो गया, शंख बज गया, ठीक है ना, हथियार जमा कर दीजिए। रात में हथियार नहीं उठाना है, रात में आराम किया जाएगा। जबकि गुरीद के लिए दिन क्या और रात क्या। तो हाई वैल्यूज जो होता है वॉरफेयर का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राजपूत उसको फॉलो करते थे। तो वही जो मैंने बोला ना कि हथियार उठा के दे देते थे, एथिकल पर्सपेक्टिव। सो द राजपूत वॉरियर्स followed the practice of ethical war like their defined time of fighting, defined time of fighting, that is sunset and sunrise. Sorry, sunrise and sunset. Defined time of fighting, right? Sunrise and sunset. Turkish had a flexible time. ठीक है, घुरीड आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ए सोशल पैटर्न ऑफ द घुरीड nobility, social pattern of the Ghurid nobility. Most of the commanders of Ghurid, most of the commanders of Ghurid were slaves, and they were ready to sacrifice their life for their master. In the success of Muhammad Ghori, three great commanders, Kutubuddin Aibak, Tajuddin Yaldoz, Nasiruddin Kubacha, played a very significant role. Nasiruddin Kubacha played very significant role. ठीक है, तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिला, ठीक है, ये याल्दौज को गजनी मिला, कुबाचा को मुल्तान मिला। तो इन लोगों ने तीनों जगह पर दिल्ली सल्तनत या जो सल्तनत घुरिद एम्पायर है उसको मेंटेन रखा। ठीक है, मैप देखना, ईरान तक है, ईरान इराक तक है घुरिद एम्पायर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस जिल ऑफ द घुरिद, religious zeal of the Ghurid. The Ghurid invaders were having the spirit of jihad, having the spirit of jihad. Religious war, spirit of jihad, that is religious war.
They take the title of Gaji. They take the title of Gaji. Ghazi, Gaji. मतलब leader of faithful. Leader of faithful. They take the title of Gaji. They call themselves Butsikan. They called themselves Butsikan. Butshikn. Butsikan. That is leader of faithful. Butsikan मतलब idol breaker. Idol breaker. जो मूर्तियों को तोड़ता है. So, declaration of religious war. Declaration of religious war gave prestige and legitimacy to the Ghurid invaders. To the Ghurid invaders in Islamic world. In Islamic world. ठीक है. और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक टाइम था जब पाल हुआ करते थे, प्रतिहार हुआ करते थे, राष्ट्रकूट ये सब था. तो इन लोगों का जो पावर बैलेंस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस था. बट मेन रीजन दैट बिकॉज ऑफ द ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल, हम लोगों ने देखा था ना, ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल हैड लास्टेड ऑलमोस्ट अराउंड 150 ईयर्स. 150 साल तक के कॉन्टिन्यूस वॉरिंग जोन जो कन्वर्ट हुआ, लैंड फ्रॉम कन्नौज टू नॉर्थ वेस्ट, इंटायर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया हैड ब्रोकन. सो नेक्स्ट लिखना, डिक्लाइन ऑफ बिग पावर्स. डिक्लाइन ऑफ बिग पावर्स. जब इधर देखो कि जैसे हम लोग बात करते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया की, तो अर्ली मेडिवल इंडिया में इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन ज्यादा स्टेबल था कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया. वो तो हमने देखा कि उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो एक रीजन था इंडिया पर इन्वेड करने का, कि भाई मोहम्मद गजनी, रीजन बिहाइंड द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी. तो वन रीजन. तो ईरान में हमेशा से ग्लैमरस अंपायर रहा है, और ईरानियन अंपायर में एक अंपायर था जिसको ससनिड अंपायर बोला जाता था. ससनिड डायनेस्टी था ईरान में. करीब 660 के आसपास ससनिड डायनेस्टी कोलैप्स हो गया. उसके बाद से पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स था वो फ्रैगमेंटेड स्टेट में था, जबकि इंडिया में उसमें आफ्टर द ओरिजिन ऑफ राजपूत एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था. ठीक है. तो इसलिए इस्लामिक इन्वेजन होने का इधर सवाल ही नहीं उठता था. कोशिश करते थे ये लोग, लगातार कोशिश किया. प्रतिहार के बारे में बोलते हैं, हमने पढ़ा है अल मसूदी को, याद होगा आपको कि अल मसूदी ने काफ़ी डिस्क्राइब किया है कि अरबियंस को स्टॉप करने में या उसके इन्वेजन को रिपेल करने में प्रतिहारों का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था. ठीक है. मगर जब ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल हुआ तो ये सिस्टम कोलैप्स हो गया. तो नो रेसिस्टेंस लेफ्ट. The comparative political stability of Central Asia and India, was very much in favor of India. The origin of Rajput like Pratihar, Parmar, Chauhan and Chalukya
Chauhan and Chalukya maintained the balance of powers. Maintained the balance of powers. There was a good security architecture also. There was good security architecture also. According to Arabic travelers, Suleiman and Al-Masudi describe the defeat of Arabians. Describe the defeat of Arabians in the hands of Partihar. Okay. Because of tripartite struggle, because of tripartite struggle, lasted for 150 years. Lasted for 150 years. Had weakened the strength of the Indians. Which resulted in subsequent invasion of Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. Resulted in subsequent invasion of Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. बात क्या करनी है आज आपसे खास, क्या खास बात करनी, बहुत खास। नोट्स जब बनाते हैं तो साइड में मार्जिन है ही नहीं। हाँ हाँ, वो ज्यादा हो गया। ठीक है, अब मार्जिन रखने का क्या एडवांटेज है, सुनो जीनियस बच्चे। मार्जिन रहने का एडवांटेज ये है कि यहां पर हमने लिखा कई सारे पॉइंट्स, आप इसमें एक शब्द लिखिए, एक दो शब्द लिखिए, ताकि आप इस पूरे सेंटेंस के या पैराग्राफ के मीनिंग को इस सेंटेंस के साथ समझ सके कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे रिवीजन में काफी हेल्प मिले। ठीक है ना, मैंने बोला ना कि ऑप्शनल में ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए। 1000 नंबर का जीएस पढ़ते हो, जी जान लगा देते हो 24 घंटे बाय 24 घंटे, और 500 नंबर ऑप्शनल लेता है फ्री का, मुफ्त में। क्या उसका आधा टाइम तो डिजर्व करता है ना, जितना जीएस को देते हैं उसका आधा टाइम तो डिजर्व करता है। हमें आधा नहीं, 1/3 ही दीजिए। 1/3 टाइम दे रहे हैं हम आपको, आधा नंबर दे रहे हैं, 50% देन द जीएस। तो कैसे सक्सेसफुल होगा, रटने की जरूरत नहीं है, जीएस में बार बार नहीं रटेंगे। तो जैसे पूछते हैं ना किसी बच्चा को जीएस में कि क्या जी कैसा चल रहा तुम्हारा पढ़ाई, तो क्लास में पूछ दिए हिस्ट्री का 2-4 क्वेश्चन नहीं बता पाए, क्यों नहीं बता पा रहे, सर ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, अपने आप आंसर है, कितना बहाना है, ज्योग्राफी पूछो, पॉलिटी चल रहा है। तो कंटिन्यूस रिवीजन नहीं कर रहे, मगर इसमें क्या है, मत करिए, मगर बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर रखिए। इसलिए नोट्स में हमेसा बुलेट पॉइंट के लिए स्पेस रखना। सी यू टुमारो।